welcome to our show, Revealing the Local Heroes. Here, we introduce you to the faces who are performing extraordinary activities in their respective fields, are unsung, are living a low-profile life, and are bringing a societal impact. So if you're keen to know who is the next local hero on our show, kindly subscribe to our channel and share this episode with your friends and family so that our local heroes will reach out every house there. So today we have with us one of the eminent entrepreneurs based out of Nasik, Sunil Chandak sir. He is an accredited trainer of Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, which is an apex body for entrepreneurship development in India. Passionate, dedicated, and determined entrepreneur as he describes himself. He is having meritorious experience of 35 years in promoting and developing entrepreneurs, particularly in Maharashtra since 1985. In the year 1995, with the passion of promoting entrepreneurship, he started Udyog Vardhani. He has trained more than 60,000 budding entrepreneurs, which is the highest number of trained entrepreneurs by an individual in India with a success rate of 81%. Sir has been awarded with National Science Tech Entrepreneur Trainer Award, National Entrepreneur Trainer Award, Sheti Mitra, Samaj Gaurav, Business Icon Award, and the list goes on. Sir, it's our immense pleasure to have you with us here today on our show. Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, sir. So we'll directly move to the question answer session, sir. So, no issue. Prashna, sir, तुमच्यासाठी. Why you felt like training people who wish to become entrepreneurs? Why you wanted the crowd to turn towards the job giver instead of the job taker concept, sir? Basically, there is a tremendous scope for entrepreneurship in India. People are rather ऐसा है कि उनको सब ऐसे संस्कार ऐसे है कि they should think about job only. जो भी BE होता है, BCom होता है, whatever the education they does, they only think about job. उनको ऐसा लगता है कि education is only for the job. While as per our theory, now 25% of the people have intents to do something on their own. They want to be their own. They want to be their own boss. लेकिन क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं उनको, क्योंकि कॉलेजेस में भी जो पढ़ाया जाता है इट इज आप कैसे जॉब कर सकते हो उसके बारे में पढ़ाया जाता है. मैंने खुद भी व्हेन आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैंने एमबीए जब किया मेरा वही मकसद था कि आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट वहां पे मुझे मैनेजर होने का ही सिखाया है. तो ऐसा कोई वहां उस टाइम मुझे कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सिखाने वाला नहीं था. तो फिर दैट इज व्हाई आई जॉइंड जॉब एंड देन आफ्टर 10 years आई कन्वर्टेड माय ड्रीम इनटू रियलिटी. मेरा कहना क्या है कि आज इसलिए बिजनेस नहीं करना है कि जॉब नहीं मिल रहे, इसलिए बिजनेस करना है कि जॉब में एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अपॉर्चुनिटीज है और इससे कई सारे फायदे हैं. बेसिकली एक तो क्या होता है, इससे आपकी एक आइडेंटिटी तैयार होती है. And so your identity will be like, I am manager of that, I am engineer of that company, I am son of him, and I am daughter of him. Then who are you? I am nothing. But if in entrepreneurship you create your own identity, that is what everyone is looking for. Okay. The second benefit, of course, money flows every day, na? In job it comes only in a month, and that to be finished in the next 5-6 days. But whereas in entrepreneurship, it is every day even you start a chai tapri, तो भी आपको डेली पैसा आता है ना? तो डेली पैसा एक विटामिन की तरह काम करता है. सी एम विटामिन इज सबसे भारी विटामिन है. बाकी विटामिन कौन से अभी तो हम बहुत जान गए कोरोना में, लेकिन एम विटामिन ऐसा है जो सब कुछ खरीद सकता है. तो एम विटामिन होना बहुत जरूरी है. तो एम विटामिन पैसे बिजनेस में ही जाता है. Of course it is a challenging thing, but लेकिन उसके रिवॉर्ड भी उतने हैं. थर्ड थिंग जो आपको बिजनेस है ना यंग रखता है हमेशा. इफ यू वांट टू बी यंग यू शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि क्या है, बिजनेस में एंजाइटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है. जॉब में क्यूरियोसिटी एंजाइटी कुछ रहती नहीं. उसको मालूम है कल भी ये काम था, आज भी है और कल भी वही काम रहेगा. वेयरएज एंटरप्रेन्योरशिप में रोज नए चैलेंज होते हैं और उससे क्या होता है कि अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह ग्रो होती है. So that is why, और फिर हमारी you will be young forever if you start your own business. आप जवान रहते हो. अभी मैं 59 का हूँ, मुझे कभी लगता नहीं कि मैं 59 का हूँ.
मुझे लगता है यार मैं अभी तक जस्ट शुरू किया है कुछ टाइम। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल है। आपको यंग, और सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रीडम रहता है ना। एवरीवन, यू मी एवरीवन जो है, सबको एक जरूरी होती है लाइफ में कि उसको फ्रीडम चाहिए। और ये फ्रीडम आप अगर बिजनेस करते हो तो ही मिलता है, जॉब करते हो तो कैसा फ्रीडम। तो ये सब अगर देना है तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का पैकेज है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए मैंने वही लाइन चुना, जबकि मैं व्हेन आई डिड अ जॉब आई वाज डूइंग सेम थिंग। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हम आखिर लोगों को बता रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस एंड आई स्टार्टेड कोचिंग टू। यस। सो सर, आपके यंग रहने के पीछे का राज यही है कि बिकम एंटरप्रेन्योर, और सर यही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। सो टुडे आल्सो सर यंग। ओके, सो सर आपने उद्योग वर्धिनी जो स्टार्ट किया है, सो व्हाट इज उद्योग वर्धिनी और क्या क्या कोर्सेज उद्योग वर्धिनी ऑफर करता है? बेसिकली उद्योग वर्धिनी इज एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एकेडमी। ये 1995 से हमने काम शुरू किया। अभी 26 इयर्स, अभी 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे। और 26 सालों में वी ट्रेन्ड 60,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु वांटेड टू बी ऑन देयर ओन। लेकिन उनको क्या है, कुछ डायरेक्शन नहीं रहता है, क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, स्कीम्स कौन सी है, मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए, पोजीशन रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, फिर बाद में अपना एक एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मिसकंसेप्ट रहते हैं। उसको दूर करने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, हमारा जो सिग्नेचर प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमारा मेन एक्टिविटी है। उसके अभी हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप इन एवरी फील्ड। हम क्या करते हैं, सोलर को, अगर किसी को सोलर बिजनेस करना है तो उसके लिए सोलर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। किसी को शेयर मार्केट में काम करना है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। किसी को फूड प्रोसेसिंग करना है तो फूड प्रोसेसिंग बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो हमारे पास ऐसे कई सारे, इवन कंस्ट्रक्शन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। We have got real estate based entrepreneurship development program है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड में टेक्निकल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इवन ई कॉमर्स बेस्ड हम वो भी नए नए प्रोडक्ट काफी ऐड करते रहते हैं, क्योंकि जो अभी अभी ई कॉमर्स का जमाना है, तो हम अगर पुराना ही सब सिखा रहे तो कैसे चलेगा। तो ई कॉमर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स है हमारे। और फिर ये होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज वन स्ट्रीम। Another stream is skill development program, where we teach जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम हम लेते हैं। जैसे वही मोबाइल रिपेयरिंग है, केवल ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही रिलेटेड है। फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन के अलग अलग भी, साइट इंजीनियर का कोर्स है, फिर बाद में रोड एंड ब्रिज इंजीनियर का कोर्स है, फिर हमारे पास मैसन का कोर्स है। ऐसे अलग अलग टेक्निकल ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इवन जो गारमेंट्स के लिए एप्पल का है। तो ऐसे कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। फिर भी वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो, उसमें हमारा थर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे है। नहीं तो एटलीस्ट दे शुड थिंक अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये पहली कड़ी है जहां से आदमी शुरू कर सकता है, फिर बाद में धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो फोकस हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। ओके, सो मतलब अगर टू समराइज वी कैन से कि आपको जिस चीज में बिजनेस करना है वो सारे कोर्सेज हम आपको सिखा सकते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। दिस इज ऑल अवेलेबल अंडर वन रूफ एंड दैट इज उद्योग वर्धिनी, राइट सर? राइट। ओके, सो सर अभी जब आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, तो आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी। तो सर ऐसे कॉमन एस्पेक्ट्स क्या आपने नोटिस किए जो आपको दिखाई दिए ऐसे लोगों में जिनको एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत थी? देखो, हर एक इंसान में ये चाहत कहीं ना कहीं होती है कि मेरा कुछ आइडेंटिटी बने, मेरा कुछ नाम बने। ऐसे बहुत लोग, लेकिन क्या है, उनको ये एंटरप्रेन्योरशिप ये जरिया है, ये उनको मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कन्विंस। उनको मिसकंसेप्ट ही बहुत ज्यादा होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं लेकिन मिसकंसेप्ट, क्योंकि क्या है, बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो वो लोग ये करते हैं कि भाई जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है।
लेकिन जिसके मेरे पास आने वाले 98% लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास घर में कुछ बैकग्राउंड नहीं है। और नेचुरली घर में बैकग्राउंड नहीं रहता है तो फैमिली में भी इतना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं रहता। हर एक पेरेंट को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छा सा सेटल हो जाए, ये सब पेरेंट्स की ये रहती है। लेकिन ये बच्चे कुछ करना चाहते हैं और उनको क्या होता है कि दे आर, उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस करना है ना बहुत पैसा लगेगा, उनको लगता है बिजनेस करना है ना बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, बिजनेस करना है जगह चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। हालांकि ये सब की कोई जरूरत होती ही नहीं है, ना पैसे की जरूरत है ना जगह की जरूरत है ना। ऐसे कई सारे मेरे खुद के ट्रेन किए हुए हजारों एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास ये कुछ भी नहीं था। तो ये सब कुछ की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन ये मिसकंसेप्ट कैरी करते हैं लोग, उसकी वजह से तो दे डोंट थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वो किनारे पे रहते, वो आगे छलांग नहीं लगाते। हमारा काम है कि उनको छलांग लगाने के प्रोत्साहित करना कि भाई ये देखो ऐसा जो समझ रहे वैसा नहीं है, ये चीज कुछ अलग है। उनकी भ्रांतियां है, कुछ ऐसे मिसकंसेप्ट है कि जिसकी वजह से वो इसकी वजह से दूर रह रहे। तो हम उनको पहले हम क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि उनको बताते हैं कि भाई दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। और अभी तो मैं आपको बताऊं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में कि हम सभी ने अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना तो वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। ये देखो दिस इज एन हार्ड ऑप्शन, बिजनेस करना है हार्ड ऑप्शन है, सेल्फ बिजनेस जॉब करना है तो सॉफ्ट ऑप्शन है। हर एक क्या है, हर एक पर्सन जनरली सॉफ्ट ऑप्शन की तरफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है कि आसानी से जो मिलता है, महीने का सैलरी मिले, ये ऐसी सीधी सिंपल लाइफ सबको चाहिए। लेकिन ये हार्डशिप अगर करते हैं तो उनका फ्यूचर भी इतना ब्राइट है, तो उनको हम ये बताते हैं, पहले कन्विंस करते हैं कि दिस इज द थिंग। अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं, कि दैट डजंट मीन यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा कोई नहीं है। मेरे पास तो वही, मेरे बिजनेस जिनका वो मेरे पास आती ही नहीं है ना, वो क्यों आएंगे मेरे पास, जिनके पास ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं वही आते हैं। तो उनका ये जो, उनमें पेरेंट्स का भी काउंसलिंग हमारा काम होता है, उनके पेरेंट्स को समझाना। क्योंकि क्या है, बिजनेस जो होता है ना, ये सिर्फ अकेले का नहीं हो सकता, उसको पूरा फैमिली सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो ये अकेला बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसको कर सकता नहीं ऐसी बात ही नहीं, लेकिन स्ट्रगल बहुत होता है। और अगर फैमिली का मोरल सपोर्ट भी है तो दैट इज इनफ टू स्टार्ट। तो वो हमारा मेन जो हमने देखा है कि फैमिली सपोर्ट ये जो है ना, ये ज्यादातर बहुत कम होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, वो हम देने का पूरा कोशिश करते हैं। ओके, सो सर मतलब बिजनेस स्टार्ट करना मतलब सिर्फ फाइनेंसेस नहीं है, इट्स मोर ऑफ इट। मतलब आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है सर, राइट? और ऑफकोर्स ये सब चाहिए, लेकिन खुद में भी वो कुछ चाहत होनी चाहिए, है ना। आपके अंदर वो चाहत नहीं है तो ये सपोर्ट रहे कि भी कुछ फायदा नहीं। वो पहले मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, ये अगर डिटर्मिनेशन आपके पास है, वो पैशन आपके पास है, तो फिर ये सब सपोर्ट वगैरह सब मिल जाता है ना। किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पे आपको सपोर्ट करती है, फेमस डायलॉग हमें पता है। तो मेरा कहना है कि वो सब सपोर्ट तभी आता है जब आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, राइट। सो सर एक चीज जो है, अभी आप जैसे जानते हो सर, द वर्ल्ड इज डिजिटल, पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो सर उद्योग वर्धिनी क्या अलग चीज प्रोवाइड कर रहा है? मतलब मार्केट में से बहुत सारे कोर्सेज होंगे जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे एंटर करना है, कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, ये सिखाया जाता है। सो हाउ उद्योग वर्धिनी स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? सबसे बड़ी बात ऐसी है कि हमारा जो कोर्सेस है वो टोटल प्रैक्टिकल है, और ये डेली एवरी प्रोग्राम अपडेट होता है। ऐसा नहीं कि मैं जो 36 साल 36 ईयर पहले जो सिखा रहा था वो आज नहीं सिखा रहा हूँ। आज के हिसाब से एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज भी अलग लगती है ना। पहले खाली रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक इम्पोर्टेंट थी, अभी आपको इनोवेटिव एबिलिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। पहले कैसा होता है, ये सब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है हर 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 दिन।
अभी ये कोरोना की वजह से एक नया और ट्रांजिशन आया है, एक नया कुछ चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि नए हिसाब से, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हम ये कैसे क्यों कर पाते हैं, इसका कारण यह है कि हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, या मैं कोई कॉलेज में नहीं सिखा रहा हूँ, या कहीं और नहीं, बुकिश नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो हमारे पास सब प्रैक्टिकल लोग, मेरे जो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो सब प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर्स है। इसकी वजह से क्या है कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दैट इज व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू उद्योग। हम लोग क्या है, नहीं तो गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद गवर्नमेंट में काम किया है, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था तो आई फाउंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ, कुछ एरिया ऐसे थे कि जो मैं वहां पे कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। तो दैट इज व्हाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आई स्टार्टेड उद्योगवर्धिनी, बेसिकली टू गिव द एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम्स होते हैं ना, इट शुड बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं कि भाई ये ईडीपी किया फिर आपने एग्जाम दिया फिर आपको सर्टिफिकेट दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम तो प्रैक्टिकल बेस होना ही चाहिए। तो हमारा प्रैक्टिकल बेस, ये हमारा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा यूएसपी। और हम हर प्रोग्राम, ये दूसरे प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम से अलग दूसरा प्रोग्राम होता है हमारा। हर प्रोग्राम में ऐसा, हर प्रोग्राम मेरे कुछ अंत पार्टिसिपेंट्स ने ये ऐसे किया, सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप कोई प्रोग्राम में दूसरी बार फी करके हो गया। बोल नहीं सर, पहले वाला डिफरेंट था, ये अलग है। क्योंकि बिजनेस सिनेरियो इज चेंजिंग एवरी डे ना। और आज अगर वो कोई पुराना बता रहे हैं आप, तो कैसे चलेगा। मैं अगर ई कॉमर्स के बारे में कोई जानता नहीं हूँ तो मुझे कौन खड़ा करे। अभी मैं क्यों एग्जिस्ट, देखो अभी ये उसका कारण क्या हुआ, आज जो भी थ्योरेटिकल सिखाने वाले लोग थे वो दे आर आउट ऑफ मार्केट। और आज उद्योगवर्धिनी इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। वी हैव, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ग्रोथ इस कोरोना पीरियड में ग्रोथ मोर देन 200 टाइम्स। इतना ग्रोथ हमारा हुआ है, हमारे पार्टिसिपेशन इतने बड़े हैं कि क्या बताओ आपको। पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। पहले कैसा था, हमारा नासिक यही वो कार्यक्षेत्र था। अभी ऐसा है कि पूरा महाराष्ट्र हमारा कार्यक्षेत्र है। और धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स पैन इंडिया, हम करने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम चेंज हो रहे हैं। हम ऑफलाइन से तुरंत ऑनलाइन आ गए। तो हमें, यू विल नॉट, 22 मार्च को पिछले साल लॉकडाउन हुआ था। इफ यू रिमेम्बर, वी स्टार्टेड प्रोग्राम ऑन 24 मार्च। 24 मार्च को प्रोग्राम शुरू किया। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फिर सब ऑनलाइन। हमारे आज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, इट्स वेरी, जिसमें 7,500 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर है। ओके, मेरा आप टोटल मेरा सोशल मीडिया देखो आप, इतना मेरे एवरी डे वी आर हैविंग एटलीस्ट वन वेबिनार। मैंने पिछले लगभग 1.25 साल में वी हैव कंडक्टेड मोर देन 300+ वेबिनार्स और मोर देन 1.5 लाख पीपल हैव अटेंडेड। और उसके बाद हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुए उसमें मोर देन 2,300 पीपल हैव पार्टिसिपेटेड। और ये देखिए, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफी प्रोग्राम मिले हैं। अभी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन, अभी पिछले साल तो CSR एक्टिविटी हमारे पास कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस साल अभी लोग आ रहे हैं हमारे पास कि भाई यार हमको भी करना है, हमें भी एक 500 लोगों को ट्रेन देना है, हमारे 300 लोगों को ट्रेन करो आप हमारी तरफ से। तो पीपल आर कमिंग, क्योंकि क्या है, कोविड को दवा ये जरूर लगती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको पैसे कमाने का जरिया कुछ बताते हैं। आज लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लॉट ऑफ पीपल हैव शट डाउन देयर बिजनेसेस। तो उनको ये क्यों बंद हुए हैं, क्योंकि वो बदले नहीं, बस दैट इज द ओनली थिंग। दैट इज व्हाई अभी किराना कोई शॉप नहीं चल रहा है, तो वो क्योंकि बदला नहीं, वही कारण है, और कोई कारण नहीं बहुत बड़ा। मार्केट में कोई बदलाव आया, मार्केट में कोई बहुत बड़ा ये आया, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि कुछ बिजनेस को जरूर हिट हुआ है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, ये कोई चीज को डेफिनेटली हिट किया है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस व्हिच हैज ग्रोन। तो इंडिया तो बहुत अच्छा स्कोप है हमको काम करने की। क्या है, ये हमारा डिफरेंस है। हम अभी लोगों को वही पुराने बिजनेस नहीं बता रहे कि जो आपको करना चाहिए, हम नए बिजनेस बता रहे हैं, नए क्या करना चाहिए। वो दैट इज व्हाई आई थिंक आवर प्रोग्राम्स आर डिफरेंट।
तो सर 200% सक्सेस रेशियो, मतलब वो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, इज रियली कमेंडेबल। मतलब लॉकडाउन जहाँ हमने देखा कि स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल बिजनेस बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए थे सर, लेकिन उद्योग वर्धनी इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। इट्स रियली कमेंडेबल सर। थैंक यू। ओके सर, अभी जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब स्टार्ट किया अपना पहला स्टेप, तो आपने भी बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस किए होंगे। तो आपका तो अभी 35+ इयर्स एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए फ्रॉम द डे वन टिल टुडे वी कैन से? सी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही स्ट्रगल होता है। बिना स्ट्रगल के एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। और वो हार्ड ऑप्शन है ना। देखो, इट्स नॉट अ सॉफ्ट ऑप्शन, इट्स योर चॉइस, इट इज माय चॉइस। ये मेरा चॉइस था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। मैं तो बहुत अच्छी तरह जॉब में था, यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर था मैं। आई वाज अर्निंग वेरी नाइसली, सैटरडे संडे छुट्टियां थी, सब कुछ आराम था। लेकिन ये मेरा यही नहीं है, दिस वाज नॉट माय। ये जो था ना, मेरा मेरा डीएनए, वो बिजनेस के लिए ही था। तो बिजनेस के हिसाब से देखो, तो इसका मतलब था कि मैं प्रिपेयर्ड था। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या करते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं। भाई देखो, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। तो लेकिन आप अगर प्रिपेयर्ड हो तो प्रॉब्लम तो एक टाइम के लिए। अभी कोरोना आया है तो क्या पूरी जिंदगी भर रहेगा क्या? अभी समझो रहेगा। अगर मेरी मानसिकता बन गई तो कोरोना मुझे कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं कर सकता। अगर आप डर गए तो कोरोना तो आपको, आप घर में बैठे रहे तो भी कोरोना आ जाएगा आपके पास, आपको ढूंढने, है ना। तो मेरा क्या कहना है कि स्ट्रगल तो होता है। आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कई जगह मेरे, देखो ऐसा हुआ था, मेरे घर की बिजली काट दी गई थी क्योंकि मेरे पास 700 रुपए नहीं थे। 700, आई डिडंट हैड 700 टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसे ही वाक्य हो गए। We had lot of problems। और काफी कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं है अपने इंडिया में बहुत ज्यादा। तो आपकी प्रोग्रेस सबको अच्छी नहीं लगती है। तो काफी लोग होते हैं कि जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है। काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर ये तो वेरी नेचुरल है कि आपको जो है कि कोई ना कोई आपको चीट किया जाता है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी हुआ है मेरे पास। लेकिन जो अगर डिटरमिन्ड पर्सन है, मैं डिटरमिन्ड हूँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो मैंने कंसिडर करके ही आगे आया था। तो दैट इज व्हाई एवरी प्रॉब्लम हैज गिवन मी न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम तो आने ही चाहिए, आएंगे तो ही डेवलप होंगे। अगर नहीं आएंगे तो डेवलप हो ही नहीं सकते। तो डेवलप प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम। इवन व्हेन आई हैड एन एक्सीडेंट, जब मुझे एक्सीडेंट हुआ तो इट वाज अ बिग एक्सीडेंट। दैट इज व्हाई आई एस्टैब्लिश उद्योग वर्धनी। ओके, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उद्योग वर्धनी आते नहीं। अब ये कोविड हुआ तो इसकी वजह से हम ऑनलाइन आ गए। अगर कोविड नहीं हुआ था तो हम ऑनलाइन आते नहीं थे शायद, वही 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 करते रहते थे। तो प्रॉब्लम को है ना, खाली अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। हमारा एंगल अगर वो पॉजिटिव रहा तो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, हर प्रॉब्लम में। टेक इट फ्रॉम मी, कोई भी मेरा जीवन में मेरे बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए सब। लेकिन अभी मेरा एक एम्प्लॉय था जो मेरे साथ 12-13 साल से जुड़ा हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड उद्योग वर्धनी। और अचानक से एक दिन वो चला गया। वो मेरा पूरा राइट हैंड था, वो पूरा मेरे ऊपर, सब सब मेरा उसके ऊपर डिपेंड था। लेकिन मैं पॉजिटिव सोचने वाला, चलो यार कुछ तो अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मेरा भाई जो था वो मेरे पास पढ़ रहा था। वो बोले, यार सुनील भाई, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरा आ जा, फिर ज्वाइन कर ले। आज वो मेरा पूरा जो शेयर मार्केट का जो पार्ट है पूरा संभाल रहा है, मेरा पब्लिक रिलेशंस वो पूरा संभाल रहा है। तो अगर वो नहीं मदन, मेरा जो आदमी अगर नहीं छोड़ के जाता था तो ये किरण डेवलप नहीं हुआ। तो हर प्रॉब्लम है ना, आपको अपॉर्चुनिटी दिखाती है, खाली देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं, मैं बता सकता हूँ। यस। तो सर मतलब जैसे आप खुद को डिस्क्राइब करते हो, पैशनेट, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, वो आप आपके लाइफ में भी यूज कर रहे हो ये प्रिंसिपल्स को, ये दिख रहा है सर आपके स्टोरीज से सर। 100%।
सो सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है सर कि आप मतलब जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो टॉप 3 चीजें आप मेंशन कर सकते हो जो आपको लगता है कि इम्पैक्ट करती है, उनको डीमोटिवेट करती है उनके गोल को अचीव करने के लिए? कोई भी टॉप 3 चीजें जो आपने डीमोटिवेट या मोटिवेट? मोटिवेट ना? डीमोटिवेट सर, नहीं डीमोटिवेट सर, मतलब उनको अपना अचीव करने से रोकती है ऐसी 3। अच्छा 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 अच्छा, ओके। डीमोटिवेट कर सकती है ऐसी चीजें जो उसको लक्ष्य से दूर कर विचलित सकती है। करती है, यस। देखो, पहला क्या होता है कि क्यों आदमी तो ये फेल्योर वगैरह जो, या जो लोग छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं, उसका कारण क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो पहला कारण क्या होता है कि ये लोग है ना, रिस्क लेते हो, रिस्क तो लेते हैं बिजनेस में, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, बिना प्लान किए हुए वो सब काम करते हैं। खाली कोई तो भी कहता है, मेरे पार्टिसिपेंट के पास ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भी फेल्योर हुए हैं उनका कारण है कि भाई किसी का चल रहा है मैं भी वो करने लगूं, तो फिर वो वैसे तो नहीं चलता ना। आप कुछ अलग हो, आपका भाई भी कुछ अलग है, आपकी बहन भी कुछ अलग है ना, तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है। हमारी कैपेबिलिटी बिना जाने और मार्केट की सिचुएशन बिना जाने अगर आप उसमें जाते हो तो प्रॉब्लम आते हैं। और देखो, दूसरा डिमोटिवेट करने वाला जो होता है ना, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने बताया आपको पहले भी, फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट है ना, देखो आदमी दिन भर चाहे काम करे, शाम को तो घर पे आना है उसको, और घर पे आने के बाद उसका अगर अच्छा स्वागत नहीं है, उसको अच्छा शब्द सुनने नहीं मिले, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। वो क्यों करना है भैया, मैं व्हाई शुड आई डू? अगर मेरी वाइफ नहीं चाहती है, मेरी मम्मी नहीं चाहती है, मेरे कोई नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, तो मैं क्यों करूं? है ना, वो किस, वाई, मेरा पर्पस जो है ना वही डिफीट हो रहा है, फिर मुझे किसके लिए करना है? अगर वो, इसलिए घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं रहा ना, अभी मैंने कई सारे, मेरे मेरे पास इतने किस्से हैं, हजारों किस्से कम से कम है, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई लेडी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मैंने जो देखा है, तो उनको घर पे इतने टॉर्चरिंग किया गया है, क्या बताऊं। वो लेडीज मुझे आगे बताया कि इवन दे वर बिटेड, उनको मारा गया, ऐसे भी हुआ है। और उनको क्या होता है, उनका सक्सेस भी, लेडीज का सक्सेस भी पुरुषों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। थोड़ा अलग बात बता रहा हूं मैं। वो सक्सेस मिल गया तो इसको वो अभिमान वाली बात होगी, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत। और क्या होता है, देखो अगर मैं कुछ करता हूँ और कोई अगर उसका अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट नहीं, चलो भाई मैं तेरे साथ हूँ यार, ऐसा नहीं बोलते, तो डिमोटिवेट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और देखो क्या होता है, लेकिन ये जो लोग डिमोटिवेटेड होते हैं ना, डिमोटिवेट, मैं तो वो कहता हूँ वो एंटरप्रेन्योर होने के काबिल ही नहीं। देखो, एंटरप्रेन्योर होना है ना, तो आपको खुद को, हमें एंटरप्रेन्योर है ना, या इनर मोटिवेटेड होता है। उसको कहते हैं अंत प्रेरित, अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का नाम ENTR, एंटरप्रेन्योर, ये जो नाम है ये अंतर प्रेरित से आया हुआ है। इट इज नॉट अ फ्रेंच वर्ड, एक्चुअली इट इज गिवन, फ्रेंच वर्ड से आया है, लेकिन ये आया है संस्कृत से। अंत प्रेरित, अंत प्रेरित वो तो यो, इसको कोई पुश नहीं करना पड़ता है, ये सेल्फ स्टार्टेड है। ये सेल्फ स्टार्टर आदमी है ना, डिमोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ऐसे मौके आते हैं कि जो आपको लगता है यार अभी छोड़ दो, बहुत हो गया, प्रॉब्लम खत्म ना होते, खत्म ही नहीं होते, एक छोड़ो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा छोड़ो तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा छोड़ो चौथा प्रॉब्लम। ये सब आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। देखो, सोने की ही परीक्षा होती है, बाकी मेटल की होती है क्या? लेकिन इसके लिए उसका भाव 50,000 है ना, उसको इतने बार टेस्टिंग किया जाता है। जो देखो, जो विष में पिघल जाए वो तुम्हारा जिंक होता है या फिर ब्रास होता है, लेकिन जो इतना सब इसमें भी चला जाता है आगे, तो वो होता है सोना। इसके लिए उसके भाव है। अगर देखो, आपको तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और आप तो जिंदा है, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है।
आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब आप जिंदा है। तो प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे डिमोटिवेट होके नहीं चलेगा। नहीं तो क्या, बहुत लोग जो है ना डिमोटिवेट होके निराश होने की वजह से, अब इवन ये कोरोना ये क्यों बढ़ रहा है, या इसके लोग क्यों जा रहे हैं, डर रहे हैं बहुत, बिना काम का डर है। अरे मुझे भी होके गया ना कोरोना, आई वॉज इन द हॉस्पिटल, मैं आईसीयू में था, मुझे भी तकलीफ हुई थी। अभी मेरा तो काम पब्लिक रिलेटेड है, तो मुझे कोरोना होना ही था, तो होना हो गया। लेकिन मैंने तो उसको चल बोला, चल भाई तू भारी कर, मैं भारी देखता हूँ, तो मैं भारी पड़ गया उसको बहुत ज्यादा। और मैंने, लेकिन जब हॉस्पिटल में था तो काफी लोग डरे हुए थे। मैंने वो देखा, मेरा एक वीडियो भी कोरोना से डाला, आप देखो। तो वो सब लोगों को मैंने बताया, अरे क्या करे, कोई लोग तो बेड से नीचे भी नहीं उतर रहे थे, डर रहे थे, उनको तो खाली वो मौत दिख रही थी। भाई मुझे तो ऐसे प्लास्टिक में डाल दिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे जला दिया जाएगा, मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। और मेरा, तू जब नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, तुझे क्या करना है, अभी तो जी ले ना यार तू, अभी तो पॉजिटिव रहा है। मेन पॉजिटिव नहीं रहने की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या होता है, देखो ये प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ कि ये तो होना ही होना है, आने ही आने हैं। तो लेकिन हम अगर डिटरमिन्ड है, हम अगर पैशनेट है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो अपॉर्चुनिटी ऐसा है। यस सर, सो मतलब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बेसिक चीज जो रिक्वायर्ड है, वी कैन से इट शुड बी फ्रॉम द इनर सेल्फ। आपको अंदर से लगना चाहिए दैट आई विश टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो अंदर अंदर जगह से अंदर होना चाहिए। राइट 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 सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है सर आपके लिए कि आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? और आपको लगता है जो हमारे यूथ ने या किसी को भी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए भी सक्सेस मंत्र क्या होना चाहिए? देखो ऐसे मंत्र तो नहीं, लेकिन जो दो तीन चीजें है मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल, अगर आपको सक्सेसफुल रहना है एंटरप्रेन्योरशिप। पहली बात जो है मेरे हिसाब से, जिसको भी कुछ करना है तो उसको he should know what I want to, गोल क्लियरिटी जिसको हम कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। स्टीफन कोवे करके फेमस ऑथर है, आपको पता है, उसने 7 सीक्रेट्स डाली है। तो उसमें पहला सीक्रेट है, स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। जो कोई भी चीज की आप शुरुआत करते हो उसका अंत क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको डायरेक्शन होना चाहिए। शिवाजी महाराज को पता था कि मुझे हिंदवी स्वराज्य करना है। धीरूभाई अंबानी को पता था कि मुझे इंडिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बनना है। सुनील चांडो को पता है कि उसको 1 लाख एंटरप्रेन्योर बनाना है। जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, वो कैसे, देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। आपका जन्म होना, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा दिन वो इंपॉर्टेंट है व्हेन यू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। आपको पर्पस ही पता नहीं, क्यों कर रहे भाई यार 2 टाइप का मिलना चाहिए, पर इतना अगर गोल है तो फिर आप कैसे जाएंगे आगे? आपको वो आगे पुश नहीं कर सकते। आपके पास वो ऐसा गोल, क्लियर गोल जो है ना, चैलेंजिंग गोल आपके सामने चाहिए। पहला मतलब क्या है कि देखो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के अगर आप देखो सब पूरा हिस्ट्री, दे वेर मोटिवेटेड बाय द गोल, दे हैड अ स्पेसिफिक गोल। हमारे नासिक के अशोक कटारिया है, अभी आज इतना बड़ा कारोबार कर, उनको क्या ये था कि मुझे किसी भी भारत की, इंडिया की नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनना नहीं। जिसको पहला टेंडर भरने के लिए 560 रुपए नहीं थे जिस आदमी के पास, लेकिन गोल था ये करना है। तो शिवाजी महाराज के पास क्या था, हाँ वो तो दगड़ धोंडे आणि मावड़े, यहाँ इसके बलबूते पे उसने हिंदवी स्वराज्य बनाया महाराज जी। तो ये गोल क्लियर था। एट द एज ऑफ 16 he had a clear idea what he want to be at the age of 16। हमारे 25 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। सर नंबर 1 ये प्राइम मूवर है, आपको आगे खींचने के लिए ये गोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर गोल क्लियर है ना तो देखो आपके अंदर पैशन भी आ जाता है, यू बिकम पैशनेट। मुझे करना है तो फिर आपको है ना, फिर आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। मैं तो देखो फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने आईसीयू में भी आईसीयू से लेक्चर लिए, आई हैव टेकन लेक्चर इन आईसीयू आल्सो। ओके, ये मैं 2 वेबिनार मैंने आईसीयू में दिए थे।
इतना ही नहीं, मैंने एक 103 टेम्परेचर था तभी भी काम किया है, क्योंकि मुझे है ना, मुझे एक ही पैशन है, दिन रात एक ही वही करना है। 1 लाख अगर बनाना है, अगर मेरे आज तक सिर्फ 62-63,000 हुए हैं, तो मुझे तो यार मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? मैं नहीं रह सकता। मैं पैशनेट है, मेरा दिन वही एक है, वही वही ये करना है, ये होना ही चाहिए किसी भी हाल में भी, चाहे कोरोना हो ना हो, ये हो ना हो, पैसे हो ना हो, जगह हो ना हो, व्हाटएवर, मुझे करना है बस, दैट्स इट। तो पैशनेट। दूसरा, आज की तारीख में तो गोल से पैशन भी आ जाता है। दूसरा आज की तारीख में इम्पोर्टेंट है कि आपको है ना इनोवेटिव होना बहुत जरूरत है, क्रिएटिव होना बहुत जरूरत है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अगर आपको मार्केट में रहना है, देखो कैसा है, पहले क्या था, कंपटीशन इतनी नहीं थी, गिने चुने लोग रहते थे किसी भी इसमें। अभी क्या होता है, हर एक चीज में हजारों कॉम्पिटिटर्स है, एंड कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस ग्लोब है। सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडियन लोग या फिर आपके गांव के लोग ही कॉम्पिट कर रहे हैं, तो कंपटीशन पूरे ग्लोब से है। तो अगर ग्लोब से कंपटीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको डरने की कोई बात नहीं है, हम कुछ इनोवेशन करते रहे, कुछ चेंजेस लाते रहे। कल से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ ये हमें सोचना चाहिए, आज से अच्छा कल मैं क्या करूंगा वो सोचना चाहिए। तो नया नया आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर मेड। आप खत्म हो गए फिर उस दिन, आप बोले नहीं यार इससे अच्छा मुझे और करने की चांस, इससे अच्छा और करूंगा, इससे अच्छा और करूंगा। तो वो बहुत जरूरी है, इनोवेटिव अप्रोच, क्रिएटिव अप्रोच। हमेशा है ना कुछ अलग सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो, इसमें मैं क्या चेंज ला सकता हूँ, क्या हो सकता हूँ। हर एक चीज देखो, और चेंज ये ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जा सकती है। अगर चेंज नहीं हो गए ना आप, तो लोग आपको चेंज करते हैं, फिर चाहे आपके पास कितना भी बड़ा बैकग्राउंड हो, वो खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा बैकग्राउंड, बहुत सारे हम देखते हैं कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर 3rd जनरेशन में पूरा खत्म हो गए, जीरो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाए, हालांकि इतना बड़ा बैकग्राउंड होने के बाद भी वो नहीं सस्टेन कर पाए। इसका कारण ये है कि चेंज नहीं लाए। तो इनोवेटिव अप्रोच आपके पास हमेशा होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ना, मेरे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं ना। वो अभी जो लोगों को कुछ सिखाते थे कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, वो मेरे पास आए, तुम क्या बिजनेस करो यार। अरे तू इतने दिन लोगों को बता रहा था कि क्या अभी तुझे प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे है? तो चेंज नहीं हो पा रही, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो मेन इनोवेटिव अप्रोच आपके पास है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होना चाहिए, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव रहे तो यू कैन कन्वर्ट एनी प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। एनी प्रॉब्लम रहता ही नहीं वैसे, खाली वो हमारा जैसे अंधेरा कभी होता ही नहीं है। अंधेरा मतलब क्या है कि प्रकाश का अभाव है और कुछ नहीं है। अंधेरा होता है फिर भी एक छोटा सा लाइट भी पूरे रूम को जैसे लाइटनिंग कर देता है, तो वैसे ही है। कुछ प्रॉब्लम, अभी समझो सूरज, आज सूरज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सूरज नहीं है, क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसका मतलब सूरज तो है ना। आप सिर्फ क्लाउड ही देख रहे हैं तो फिर आपको कभी सूरज नजर नहीं आएगा ना। तो ऐसा है कि सूरज तो होता ही है, शायद हमें अभी क्लाउड है लेकिन तो सूरज तो है, रात है तो ठीक है ना, सवेरे भी होना, सवेरा होने ही वाला है। मेरा कहना क्या है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे अंत में, तो लेकिन अगर हम निगेटिव माइंडसेट से रहे तो हर प्रॉब्लम आपकी कठिनाइयां और बढ़ाएगा। अगर हम पॉजिटिव रहे तो हर प्रॉब्लम आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई उपलब्धियां देगा। ऐसा है। तो ये आपकी सोच पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस पाना है तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। नहीं तो फिर ये हमें फेल्योर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाकी मार्केट का नहीं कि प्रॉब्लम। अगर समझो मार्केट में आपके प्रोडक्ट नहीं बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को कुछ और चाहिए और आप कुछ और दे रहे हैं। तो फिर लोगों को क्या चाहिए वो आप देखो ना, और आपको शायद उसमें अगर मैं सोचता था यार
अभी ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? अरे लोगों को, अभी लोग अगर ऑनलाइन है, लोग अभी मोबाइल पे है, लोग अगर लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, और आपको टू रोड कॉर्नर दुकान डाल के क्या चलेगा आपका? आपको ऑनलाइन ही आना पड़ेगा लोगों को ऑनलाइन बताने के लिए। यू हैव टू कम ऑनलाइन, है ना? तो मेरा कहना क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, अपॉर्चुनिटी तो होती ही होती है, लेकिन खाली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल क्लैरिटी, और उसके हिसाब से पैशनेट होना, और दूसरा इनोवेटिव, और तीसरा पॉजिटिव। बस ये तीन चीजें मेरे ख्याल से सबको आपको लेके जाएंगे। यस। मतलब सर, टू समराइज हम ऐसे कह सकते हैं, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। बस नजरिए की बात है, और क्या है। राइट राइट सर, राइट। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये तो आपने सक्सेस मंत्र के बारे में तो बता दिया, बस आखिरी कुछ बात आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे उनको? हाँ, मैं तो सबको हमेशा कहता हूँ भाई, आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचो। ये बहुत बहुत ही अच्छा करियर है। इससे अच्छा करियर और कुछ नहीं है, जो आपको इतना कुछ देता है। देखो, बहुत कुछ अगर बहुत पाना है, बिना कष्ट से कुछ मिलता नहीं। मराठी में एक है, हमारी बहना भाई ने कहा है, आदि कष्ट मग फळ, कष्ट विना ते निष्फळ। देखो, हार्ड ऑप्शन में क्या होता है, आपको तकलीफें बहुत होती है, लेकिन आपका अंत बहुत अच्छा होता है। सॉफ्ट ऑप्शन में क्या होता है, आपको तकलीफें नहीं होती है, लेकिन अंत बहुत खराब होता है। और देखो, सैराट आपने देखा होगा, और दिलवाले दुल्हनिया भी आपने देखा होगा। तो सैराट में क्या होता है, वो सॉफ्ट ऑप्शन लेता है, वो दोनों भाग के जाते हैं, घर वालों का अपोज होता है, भाग के जाते हैं। क्या होता है, अंत क्या है, वो 2-3 महीने 4 महीने मजा करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अंत क्या है, वो खून भरे उसके पैर बच्चे के, वो ऐसे घूम रहा है, सब मर्डर हो जाता है। और दिल वाले दुल्हनिया हो, या फिर तुम्हारा चेन्नई एक्सप्रेस हो, उसमें क्या होता है, इसको भी घर से अपोज है, लेकिन वो हार्ड ऑप्शन चुनता है। वो सिमरन की माँ बोलती है कि बेटा तो इसको भगा के लेके जाओ, बोले नहीं नहीं, आप सबका दिल जीत के लेके जाना चाहता हूँ मैं। बोले तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, जो होगा। और उसको बहुत मारा जाता है, पिटा जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अंत में उसका ही बाप कहता है, जहाँ सिमरन जहाँ जिले अपनी जिंदगी। तो कैसा होता है कि उसका अंत कितना अच्छा है। देखो, आपका आपको क्या चाहिए, अच्छा अंत अच्छा चाहिए या अंत बुरा चाहिए, इसके ऊपर आपने चॉइस करना है। तो आपको चॉइस हर एक का मेरे ख्याल से हिसाब तो ऐसा है कि उसको अंत अच्छा चाहिए। अगर अंत अच्छा, अंत भला तो सब भला, ऐसे कहते हैं। तो अंत अगर अच्छा है, तो उसके लिए हार्ड ऑप्शन है, उसको तकलीफ है, प्रॉब्लम है। अभी देखो, मुझे तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी पोजीशन है, लेकिन मैं भी आज भी 12, 14, 15 घंटे काम करता हूँ, लॉकडाउन की पीरियड में भी। तो वो जो है ना, ये पैशनेट आदमी होता है। और फिर आज कैसा है, ये तकलीफ रहती नहीं, इनफैक्ट ये आपको जिंदा रखती है, ये चीजें आपको जिंदा रखती है। तो मैं बहुत लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम एंजॉय। देखो, अपनी मर्जी की चीजें करते आना, इसको कहते हैं लाइफ जीना। तो मैं मेरी मर्जी की चीजें कर रहा हूँ, और ये बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप सबने भी एंटरप्रेन्योरशिप, देखो ये हार्ड ऑप्शन है, लेकिन यस, इसमें मजा बहुत है, तकलीफें है, लेकिन अंत बहुत बढ़िया है। तो एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं आप, या ऐसे ही यार आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, तो जहर पीना है, अमृत पाशन करना है, ये आपके ऊपर है। तो बस पॉजिटिव रह के काम करो। एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कोई करियर मेरे हिसाब से नहीं है, आप उसके बारे में ही सोचो। थैंक यू। सर आपसे बात करके एक चीज तो हमें पक्का पता चले कि आप सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप लवर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड लवर भी है सर। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दोज व्यूअर्स। आपको पता नहीं है, लेकिन सर शायद हर वीक में एक सेशन लेते हैं यूट्यूब पे, जहां पे वो खुद अपने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं और उनका एक सेशन लेते हैं, जहां पे जिन्होंने सर, मतलब सर ने जिनको ट्रेन किया है उनका सेशन सर लेते हैं। लेकिन सर को जब मैंने अप्रोच किया,
सर ने तुरंत विदाउट आस्किंग एनी सेकेंड क्वेश्चन सर ने मुझे बोला कि आई एम रेडी टू कम डाउन टू योर शो. सो सर आई एम वेरी मच ग्रेटफुल सर. आपने मतलब बहुत जल्दी मेरे शो पे आने के लिए हाँ बोल दिया सर. थैंक यू सो मच सर. आपने आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ मेरे में इन्वेस्ट किया. थैंक यू सो मच सर. उसमें क्या बहुत बड़ी बात नहीं. आपके जरिए मैं और 500,000 लोगों के पास पहुंचा सकता हूँ. मेरी जो एंटरप्रेन्योर, मुझे खुद को पब्लिसिटी की नहीं जरूरत. तो मेरे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसको पब्लिसिटी मिलना चाहिए. दैट्स इट. थैंक यू समृद्धि. बहुत अच्छा आपने काम कर रहे हो. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी. और भी अच्छे काम करते रहो. वी आर देयर टू सपोर्ट. थैंक यू सो मच सर. सर को जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है सर के सोशल मीडिया हैंडल्स का. आप सर तक पहुंच सकते हो. एंड कीप वॉचिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बाय.